Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से हम हर एक का स्वागत करते हैं। I hope you all are doing good and well. मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग सब ठीक हैं। Are we excited to witness this wonderful day? क्या आज हम उत्साहित हैं आज के दिन को देखने के लिए? Because this day the Lord has made. क्योंकि आज के दिन परमेश्वर ने बनाया है। And we are alive just because of the Lord's grace. और परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से आज हम जीवित हैं। As we begin this wonderful worship, जैसे आज हम ये आराधना को शुरू करते हैं, let us turn to our Bibles to Psalms 59 verse 16. भजन संगीता का किताब हम खोलेंगे। Psalms 59 verse 16. 59 अध्याय में Verse 16. The word says, "But I will sing of your power. Yes, I will sing aloud of your mercy in the morning, for you have been my defense and refuge in the day of my trouble." परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। Hallelujah! How wonderful our God is. हमारा परमेश्वर कितने महान है। God is our refuge. वो हमारे शरण स्थान है। Even in the times of our troubles which we are going through, और परेशानियों के बीच में भी, but the Lord says that I am your refuge. और परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरा शरण स्थान हूँ। And we are His refugees. और हम उनमें शरण लेते हैं। How wonderful our God is. हमारा परमेश्वर कितने महान है। Can you please turn to John chapter 16, यूहन्ना का किताब 16 अध्याय हम खोलेंगे, verse 33. उसका 33 वचन। The word says that these things I have spoken to you, that in me you have peace. In the world you will have tribulations, but be of good cheer. I have overcome the world. मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। Hallelujah. हालेलुया। How wonderful our God is. परमेश्वर महान है। He has given us this assurance. परमेश्वर ने हमें ये श्योर दिया, बोला है। He says that the word says that in the times of tribulations, but still be of good cheer. और बाइबल में लिखा है कि क्लेशों के बीच में भी शांति में रहो, Because the Lord has overcome this world. क्योंकि परमेश्वर जीत गए हैं। He is a God of realistic. परमेश्वर संसार में जीत गए हैं, वो सच्चे परमेश्वर है। And He has shown when He was on this world. और उन्होंने दिखाया जब वो ये दुनिया में थे। Even at times, my dear brothers and sisters, हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, we might go through a lot of pain and tribulations. और क्लेशों और मुसीबतों के बीच में हम रहेंगे, But in the midst of all this, लेकिन इसके बीच में be of good cheer. ढाढ़स बांध के खुशी में रहो, Because the Lord has shown us that He has overcome this world. क्योंकि परमेश्वर ने दिखाया है कि वो जीते हैं ये संसार में, And we can also be overcomers of this world. और हम भी जीत सकते हैं। Come on, church, rise up and let us look up to the Lord in prayer as we आइए meditate this सब लोग word. उठ जाए और उत्साहित रह के हम अपनी आंखें बंद करके परमेश्वर की ओर देखेंगे। Lord, we thank you for this time you have given us. प्रभु धन्यवाद इस सुंदर समय जो आपने दिया। This morning you have given us this word, Master God. प्रभु आज की सुंदर दिन में आपने ये वचन को दिया। Let us be glad in our tithings and worship, Master. प्रभु हमारी आराधना में हर एक चीजों में हमें खुशी के साथ रहे, Even in spite of all these tribulations and pandemics which we are going through. और ये क्लेश और मुसीबतों के बीच में भी जहाँ हम गुजर रहे हैं, You have told us to be of good cheer. आपने कहा है कि हमें खुशी के साथ ढाढ़स बांधना है। Yes, Lord, you have shown us that we need to be of good cheer. आपने ये दिखाया है और कहा है हमसे। Thank you, Jesus, for your word and thank you for your grace upon us. आपके वचन के लिए अनुग्रह के लिए धन्यवाद। Lord, as we begin this worship and word, Master God, जैसे वचन को और आराधना शुरू करते हैं, Lord, let us be prepared at all times, Lord. हर पल तैयार रहने के लिए हमें मदद And कीजिए। let your word speak to us, Master. आपका वचन हमसे बात करे। And let us have one mind and one spirit, O Lord. प्रभु एक आत्मा और एक सोच को हमें दीजिए। And we pray for the worship team who's going to lead us in worship. और आराधकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं।
let us worship you in truth and in spirit. आत्मा और सच्चाई से And करें। that's what you expect from us, और Lord. यही आप भी चाहते हैं। We thank you for all the wonderful things you have done throughout this week, Lord. पूरे हफ्ते आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए And धन्यवाद। we thank you for the things which you're going to do in the coming weeks as well, और Lord. जो आप करने वाले हैं उसके लिए धन्यवाद। Let us have a blessed time and let us have a great time with you, Father God. प्रभु एक आशीषित समय और भी आपके करीब आने के लिए मेरी मदद कीजिए। And we thank you for all those who are watching us right now live in the name of और Jesus. जो कोई आज लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं, We pray that Lord Almighty God touch their lives and speak to them through your word, oh Father छू God. लीजिए और अपने शब्दों के द्वारा बात And कीजिए। as we prepare ourselves to worship you in truth and spirit, और जैसे हम अपने आप को तैयार करते हैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करने, fill us with your spirit, oh Father God. आत्मा से हमें भर दीजिए। As we worship you, let the heavens open up and rejoice in the name of our जैसे Lord हम and Savior आराधना Jesus करते हैं Christ. स्वर्ग खुल जाए प्रभु। Hallelujah, hallelujah. We thank you, Jesus. धन्यवाद। Thank you, Father God. धन्यवाद। Once again, we thank you, Father. धन्यवाद। Lord Almighty God, prepare us in our hearts so that we could worship you in truth and spirit, हमारे Lord. हृदय को तैयार कीजिए प्रभु ताकि हम आत्मा और सच्चाई से आराधना In करें। everything we do, let your name be glorified. जो कुछ भी हम करते हैं उसमें आपके नाम की In महिमा हो। Jesus' most precious name we pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं। Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Come on, rise up, church. And let us worship the Lord in सब truth लोग and spirit. शायद परमेश्वर की आराधना स्तुति करें। Amen. आमेन। हालेलुया। एक जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद हम करेंगे। हमारा परमेश्वर जीवित है। जैसे हमने गाया, आप हमारे शरण स्थान है। जैसे हमने अभी पढ़ा वचन में, वही चीज हम कहेंगे। लॉर्ड, यू आर माय टॉप, यू आर माय पावर, यू आर माय एवरीथिंग, लॉर्ड फादर। हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर आनंद के साथ प्रभु के नाम की महिमा करें। हालेलुया। In a difficult hour, he will crush the devourer and bring the paths of darkness underneath my feet. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Blessed be the name together. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord together. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord.
the Most High. Jesus, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Come to the river of life, you will find healing here. Come to the river of life, come and drink freely here. Come if your heart is searching, come if your soul is thirsty. Join in the drink of the mercy of Jesus Christ and the river of from a land of eternal life, there's no more sorrow and no more night. Into the hearts that are lifted to Him, filling His children again and again. Come to the river of life, you will find healing here. Come to the river of life, come and drink freely here. Come if your heart is searching, come if your soul is thirsty. Join in the drink of the mercy of Jesus Christ and the river of Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Let's all lift our voice. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord, the Most High. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord, the Most High. Glory to the name of the Lord. Let's sing. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, the Most High. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. प्रभु का नाम हमारा शरण स्थान है. हालेलुया. केवल वो ही हमारे लिए एक सामर्थ है. हालेलुया. Hallelujah. आभारी 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 आभारी. So जैसे मैं आभारी गाती हूँ, आपको मेरे पीछे पीछे गाना है. हालेलुया. उत्साह के साथ ताली बजा. तो ये मराठी गीत जो है हम रिपीट करते रहेंगे. जो जैसे सिस्टर गाती है, आप इसके पीछे पीछे गाकर
परमेश्वर का कहेंगे प्रभु हम आपसे बहुत आभारी हैं। हालेलुया, उत्साह के साथ। आभारी 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 अभी आभारी रे आभारी मानतो ईश्वरा अभी आभारी रे आभारी मानतो ईश्वरा खायाला पियाला येशूने दिले खायाला पियाला येशूने दिले राहायला जागा येशूने दिले राहायला जागा येशूने दिले खायाला पियाला येशूने दिले राहायला जागा येशूने दिले आभारी रे आभारी मानतो ईश्वरा आम्ही आभारी रे आभारी मानतो ईश्वरा दुनियाची माफी येशूने दिली दुनियाची माफी येशूने दिली नवं जीवन येशूने दिले नवं जीवन येशूने दिले दुनियाची माफी येशूने दिली नवं जीवन येशूने दिले आम्ही आभारी रे आभारी मानतो ईश्वरा ओ आम्ही आभारी रे आभारी मानतो ईश्वरा आभारी 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 रे आभारी मानतो ईश्वरा ओ आम्ही आभारी रे आभारी मानतो ईश्वरा आभारी 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 आम्ही आभारी रे आभारी मानतो ईश्वरा ओ आम्ही आभारी रे आभारी मानतो ईश्वरा आम्ही आभारी मानतो ईश्वरा आम्ही आभारी मानतो ईश्वरा ओ आम्ही आभारी रे आभारी मानतो ईश्वरा ओ आम्ही आभारी रे आभारी मानतो ईश्वरा हालेलुया क्या आप आभारी मानते हैं यीशु को हालेलुया जोरदार ताली बजाकर प्रभु यीशु का धन्यवाद कहेंगे थैंक यू जीसस हालेलुया वचन कहता है प्रभु की स्तुति हम अलग अलग प्रकार से करते हैं ताली बजाकर आवाज उठाकर साइलेंटली गाना गाकर नहीं तो स्तुति करके प्रभु की हम महिमा करते हैं हालेलुया ना हमारे सोच में कुछ और सोचकर लेकिन वो प्रभु को स्तुति करें वो प्रभु की आराधना नहीं है लेकिन आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करना ही सच्चा आराधना है हालेलुया आइए अपने आंखें बंद करेंगे और प्रभु की ओर उनकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद कहेंगे हालेलुया
We thank you, Jesus, for this beautiful time that you've given us, Lord. We thank you for the grace that you have given us to worship you and to glorify you. Father, we pray for all those who have joined along with us, and we pray, Father, that you will cover them with your precious blood and fill their houses with your glory and fill their houses with your presence, Master. आपकी उपस्थिति से हर एक घर को भर दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आप ऐसे करने वाले, इसलिए हम धन्यवाद कहते हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Father God, for you alone are our refuge and our strength, Master. We give you all the glory. We give you all the honor, Master. As we glorify you, जैसे हम आपकी आराधना करते हैं, हर एक बीमारी को, हर एक श्राप को, हर एक दुख दर्द को दूर कर दीजिए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद यीशु, आप ऐसे करने वाले हैं। हालेलुया। जैसे हम आराधना करते हैं, प्रभु की उपस्थिति आपके घरों को भरे और प्रभु के नाम की महिमा हो। जो कुछ भी परेशानी है, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए, क्योंकि प्रभु कहता है कम टू मी। वो कहता है कि आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। Jesus, hallelujah. We praise you, Father. Hallelujah, hallelujah. आइए अपने मुंह खोलकर प्रभु की हम let's worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise you, we worship you, Father. We worship you, Father. You are good, and we pray, Father, just as your word says that there is power in your name, just as your word says there is healing in your name. जैसे आपका नाम कहता है कि आपके नाम में सामर्थ है, चंगाई है, छुटकारा है। आपके नाम के अनुसार हर एक घरों में एक छुटकारा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, जीसस। जब तेरा नाम कोई सहारा है, एक नाम जो तेरा सहारा, जब तेरा सोचे निर्बल है तू, है एक नाम जो होगा तेरा बल। जब तू सोचे निर्बल है तू, है एक नाम जो होगा तेरा बल। यीशु पुकारो तुम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, पुकारो तुम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जब अपनों ने छोड़ा हमें, एक ही नाम है जिसने हमें सीने से रखा। जब शत्रु ने हमें घेरा है, एक नाम ने हमें बचाया है। हालेलुया। वो एक नाम हर नाम से ऊंचा है। हम ऐसे ही आराधना नहीं करते, लेकिन वो नाम का वैल्यू, कीमत हम जान कर करते हैं। आमीन। जब अपनों ने छोड़ा तुझे, है एक नाम
बचाएगा जो तुझे, जो सबने कहा होगा तेरा अंत, है एक नाम जो कहता शुरू हुआ, जो सबने कहा होगा तेरा अंत, है एक नाम जो कहता शुरू हुआ, यीशु नाम, यीशु नाम, पुकारो तुम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, पुकारो तुम, यीशु नाम, 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 यीशु नाम। बहुत बार ऐसे होता है, हम अपने नाम को तो जानते नहीं हैं, जान के भी अनजाने में जीते हैं। इस दुनिया में हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जीते हैं। We are surrounded by a lot of people. सोशल मीडिया में होने दो, हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, बहुत सारे लोग हैं। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो देखते हैं बहुत बार ऐसे होता है कि परमेश्वर के लोग अपने आप को सोचते हैं कि वो टुकराए हुए लोग हैं। Many times we see, we read in the Bible, or we feel that the people of God feel rejected at times. ऐसे लगता है कि ये दुनिया ने मुझे छोड़ दिया है, क्या प्रभु ने भी मुझे छोड़ दिया है। बाइबल में हम देखते हैं कि 10 जो लेपर्स थे, कोढ़ी की बीमारी से 10 जन थे जो शहर से बाहर थे। हालेलुया। During those times, उस समय में अगर किसी को कोढ़ी की बीमारी थी तो उनको शहर से, परिवार से, रिश्तेदारों से दूर किया जाता था। They used to put them away from their family, relatives and friends. और उनका जीवन जंगल में रहता था। एक कोढ़ी दूसरे कोढ़ी का दोस्त हो जाता था। वो लोग एक ग्रुप बन जाते थे। उनका जीना वहां था, उनका मरना भी बाहर ही था। पर बाइबल में लिखा है कि जब यीशु शहर से बाहर अपने चेलों के साथ जा रहे थे तो ये कोढ़ी वहां थे, 10 कोढ़ी वहां थे। हालेलुया। परमेश्वर यीशु आपको खोजते हुए आता है। He is a God who comes seeking for you. अगर आपने कभी उनको जाना नहीं है तो भी वो आपकी ओर पहले कदम लेते हैं। बाइबल में लिखा है that while we were yet sinners, Christ died for us. कि जब हम पापी ही थे, यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पर मरे थे। आमीन। हमने परमेश्वर यीशु को हमने रिक्वेस्ट नहीं किया कि प्रभु प्लीज आकर मेरे जीवन में उद्धार दीजिए, मेरे लिए क्रूस उठाइए, अपना लहू बहाइए। नहीं, हम तो अनजाने में जी रहे थे। बाइबल में लिखा कि हम पाप में जन्मे थे, पर परमेश्वर ने खुद एक कदम उठाया। यीशु ने खुद वो कदम उठाया। परमेश्वर पिता ने जगत से पहले प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। हालेलुया। The Father himself took the first step to send his only begotten son into this world. क्या आप सोच रहे हैं कि आप बाहर हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि आप दुनिया से अलग हो गए तो आप अकेले हैं? नहीं, यीशु आपको खोजते हुए आता है। हालेलुया। पूरा परिवार, कितना भी होने दो, अपना माता पिता भाई बहन सब लोग, एक कोढ़ी की बीमारी हो गई तो उनको उनके जीवन से बाहर निकाल देते हैं। पर उन कोढ़ियों को भी देखने के लिए यीशु मसीह आया। हालेलुया। Jesus came out of the city and Bible says he met these 10 lepers. और यीशु ने उन सब 10 को चंगा किया। आमीन। Of course आप वो 10 कोढ़ी के बारे में जानते हैं, पर एक चीज जान लीजिए कि यीशु आपको खोजते हुए आता है। आप सोचते कि मेरे लिए कौन है? Who is there for me? यीशु आपके लिए है।
हालेलुया, वो भरोसेमंद है. He is the faithful God who you can trust at all times. Bible says, trust the Lord at all times, you people. Pour out your hearts to Him. हे जन, परमेश्वर के जन, परमेश्वर पर भरोसा रखते रहो. अपना हृदय को पूरी तरह से उनके हाथों में दे दो. वो तुम्हारी रक्षा करेगा. आमेन. जब शत्रु कहता है कि तुम्हारा क्या होगा, क्या है तुम्हारा भविष्य, व्हाट इज योर फ्यूचर, व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट यू, व्हाट इज सो डिफरेंट अबाउट यू, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे अंदर ऐसे क्या खूबी है कि तुम दूसरों से अलग हो, तुम्हारा क्या भविष्य, तुम्हारी क्या आशा, दुनिया कुछ भी कहे, यीशु आपके साथ है. ये नाम हमारे साथ है. सभी कहेंगे यीशु नाम. कम ऑन, ओपन योर माउथ एंड से, मुंह खोलकर कहो यीशु नाम, यीशु नाम. ये नाम परमेश्वर ने हमें दिया है और बाइबल में लिखा है ये सारे नामों से ऊंचा यीशु नाम है. जब हम ना ये नाम को पुकारते हैं, सोचो मत कि ये नाम ऐसे किसी भाई बहन का नाम पुकारने जैसा नहीं है. It's not just an ordinary name we are just calling out to. No, this name has power. Emmanuel, God is with us. This name has power. ये नाम में सामर्थ है. ये नाम उद्धार लेकर आता है. ये नाम आपको बचाता है. ये एक नाम ने हमें उद्धार दिया है. Hallelujah. Just call out to the name of Jesus Christ. All those who call to His name will be saved. जो भी उनके नाम को पुकारते हैं, बाइबल में लिखा है, वो बचाए जाएंगे, उद्धार पाएंगे. All those who confess that Jesus Christ is Lord are saved. बचाए जाते हैं, उद्धार पाते हैं. आमेन. जैसे हम ये गाते हैं यीशु नाम, यीशु नाम, आवाज उठाकर आप ये नाम को पुकारिए. आपके जीवन में अगर कुछ भी दुख तकलीफ है, समस्या है, टूटापन है, नहीं तो कुछ भी बीमारी है, ये नाम चंगाई लाएगा. ये नाम छुटकारा लाएगा. ये नाम आपके जीवन में जीवन को लाएगा. हालेलुया. इन द नेम ऑफ जीसस राइज अप एंड वॉक. बाइबल में लिखा है कि पतरस और यूहन्ना ने कहा यीशु मसीह के नाम में उठकर चल फिर. और वो लंगड़ा, जो जन्मी लंगड़ा था, he was crippled from birth, sitting at the gate, beautiful. वो फाटक, जो सुंदर फाटक पे बैठा है, पतरस और यूहन्ना देखकर कहता है यीशु मसीह के नाम में उठकर चल फिर. और वो आदमी उठता है और परमेश्वर के नाम की महिमा करते करते, कूदते हुए खुशी के साथ परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश करता है. हालेलुया. If you are sitting outside the temple of the Lord, अगर आज आप सोच रहे हैं कि मैं बाहर हूं, मेरा क्या है, कौन है, मेरा भविष्य क्या है, नहीं. परमेश्वर कहते हैं यीशु मसीह के नाम में उठो. Come on, get up in the name of Jesus. Rise up in the name of Jesus. और जैसे वो मनुष्य उठा, वो कूदकर खुशी के साथ परमेश्वर की महिमा करते करते परमेश्वर के मंदिर में गया. He did not go back to his relatives. वो अपने रिश्तेदार, परिवार, सबके पास भाग के नहीं गया. वो तुरंत परमेश्वर की उपस्थिति में गया, परमेश्वर को महिमा देने के लिए. आज भी जैसे परमेश्वर की उपस्थिति में है, as we are worshiping the Lord in His holy presence, उत्साह के साथ परमेश्वर की महिमा करो. Rise up in the name of Jesus. Get up from your deadly situation. अगर आपका जीवन में कुछ टूटा है, you feel like you are crippled, get up in the name of Jesus. It's time to rise up. It's time to enter the presence of God. अगर आप बाहर बैठे हैं, कोड़ी के जैसे सिटी के शहर के बाहर है, नहीं, ये समय है अंदर प्रवेश करने का. ये समय है परमेश्वर के पास आने का. परमेश्वर यीशु कहते हैं उस 10 कोड़ी को जाओ, अपने आप को याजक को दिखाओ, क्योंकि समय आ गया है तुम अंदर शहर में प्रवेश करने का. Hallelujah. It's time you walk in. Walk into your calling. Walk into what you are called for. जाओ जहाँ परमेश्वर ने तुम्हें पुकारा है. जाओ कहाँ तुम परमेश्वर की महिमा कर सकते हो. Go in where you can glorify the name of the Lord Jesus Christ. In the name of Jesus, rise up. Hallelujah. आइए साथ मिलकर आवाज उठाते हुए हम गाएंगे यीशु नाम, यीशु नाम. ये नाम हमें छुड़ाएगा, ये नाम हमें सामर्थ देगा, ये नाम हमें जीवन देगा. Come on together, let's lift our voices together. Hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah, Daddy. Thank you Daddy. Thank you Daddy. Thank you Daddy. Hallelujah. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम. The name of Jesus. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम.
यीशु नाम, पुकारो तुम यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया। जब पापियों ने छोड़ा तुझे, है एक नाम जो सीने से रखता तुझे, जो तेरे शत्रु गिरे तुझे, है एक नाम बचाएगा जो तुझे, जो सबने कहा होगा तेरा अंत, है एक नाम जो कहता शुरू हुआ, जब सबने कहा होगा तेरा अंत, है एक नाम जो कहता शुरू हुआ। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। जोरदार ताली बजाकर हम यीशु नाम को धन्यवाद करेंगे। Let's give a clap offering and thank the Lord Jesus Christ. Thank you, Daddy. धन्यवाद प्रभु उद्धार के लिए, धन्यवाद प्रभु मेरे जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु मेरे प्रभु रिश्तेदारों के लिए, प्रभु मेरे परिवार के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, मेरे जॉब के लिए, मेरे काम के लिए धन्यवाद, मेरे उद्धार के लिए धन्यवाद प्रभु, आपके लहू के लिए धन्यवाद यीशु, उस क्रूस के लिए धन्यवाद प्रभु पिता, चंगाई के लिए धन्यवाद, छुटकारा के लिए धन्यवाद, आपकी तसल्ली के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Come on, open your mouth and say thank you Jesus, thank you Daddy, thank you Daddy, thank you Daddy, thank you Daddy. We love you Lord Jesus, we love you Daddy. हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु। Thank you Jesus, hallelujah. प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, आप योग्य है प्रभु, आपके समान कोई नहीं है। आज के सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो आपने दिया, उसके लिए धन्यवाद। हजारों बार धन्यवाद कहना काफी नहीं जो कार्य आपने हमारे जीवन में किया है। We thank you Lord। वो नाम को पुकारने के लिए एक और हफ्ते आपने दिया, एक और मौका हमें दिया, एक और रविवार हमें दिया, उसके लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज जो कोई ये लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं, जो देखने वाले हैं, हमारे को आपके हाथ में देता है। एक महान कार्य कीजिए यीशु मसीह के नाम से। जैसे हमने कहा प्रभु, जैसे हमने आपके नाम को पुकारा है, हम विश्वास करते हैं जो कोई आपको ढूंढते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होता, कभी शर्मिंदा नहीं होता। आज तक वो शर्मिंदा नहीं हुआ, क्योंकि आपका वचन हमें दृढ़ करता है, हमें स्थिर करता है। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जैसे हम वचन को भी सुनेंगे, हम मांगते हैं वचन द्वारा हमसे बात कीजिए, हमसे बात कीजिए। आइए अपने मुंह खोल के कहेंगे प्रभु मुझसे बात कीजिए, मेरे जीवन के लिए क्या जरूरत है आप जानते हैं, और आप बात करने वाले परमेश्वर है, सुनने वाले परमेश्वर है। हमसे बात कीजिए यीशु। सारी शैतान के बंधन को, रुकावटों को हम यीशु के नाम से बाहर निकालते हैं। उलझन में लाने वाली आत्माओं को, शक लाने वाली आत्माओं को, आपसे दूर करने वाले हर आत्माओं को जो आपके लोगों के जीवन में आता है, यीशु मसीह के नाम से उसको बाहर निकालते हैं। आपके नाम की महिमा हो प्रभु। Let your name be glorified, Lord. Take total control. सारी स्तुति, महिमा
प्रशंसा गौरव हम केवल यीशु नाम को देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र अति पवित्र नाम से। सुन और कबूल कर हमारे स्वर्गीय जीवित पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजा के हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हमारा परमेश्वर जीवित है। आमेन, आमेन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। और जैसे आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप कमेंट्स में अगर कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है तो डाल सकते हैं। ये वीडियो को लाइव को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त और परिवार भी इसमें जुड़े। हालेलुया। आप सबका स्वागत वापस यीशु मसीह के नाम में हार्ट ऑफ क्राइस्ट चर्च के लाइव स्ट्रीम में करना चाहते हैं। आज का दिन यहोवा ने हमारे लिए बनाया है। आज का दिन उत्साह का दिन है, आनंद का दिन है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है, हमेशा जीवित रहेगा। आमेन। ही इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। अपने आप को हम तैयार करेंगे। अपनी बाइबल आप खोल के रखिए। जैसे घरों पे बैठे हैं, आप अपने कान खोलकर, हृदय को खोलकर, मन को खोलकर हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। Even this day we'll open our minds, our hearts, and we'll open our Bibles and we'll be ready for the word of God. God will speak to us. Hallelujah. वे पासवान आकर हमारे बीच में वचन बांटेंगे। सभी उत्साह के साथ आप जुड़े रहिए। I request you all to be continually connected in this live stream. हम वचन सुनेंगे। वचन से, परमेश्वर के वचन से सामर्थ आता है, परमेश्वर कार्य करता है। Amen. Pastor Rajogis will come forward and he will share God's word. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको मैं आशीष देता हूँ। I bless you all in the name of the Lord Jesus Christ. इसलिए एक हफ्ते से प्रभु आपको और हमको संभाला, उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। From the past one whole week, the Lord has protected us, and let us thank the Lord for it. एक एक दिन जीवन जो हम प्रभु हम सबको जो दे रहा है, उसके लिए हम धन्यवाद देना पड़ेगा। For every single day that He blesses us with, we need to give Him thanks. बहुत जन ये सोचे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कोई कुछ भी नहीं हो सकते। Many people plan that I must do this, I must do that, but it doesn't come to pass. प्रभु परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, God is a God who loves you, और आपके ऊपर खेल करने वाला परमेश्वर है, and He is a God who cares for you. और वो देखने वाला परमेश्वर है, He's a God who watches और over आपको you. उत्तर देने वाला परमेश्वर है। He's a God who answers you. आज मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह आपका नाम से कुछ नया कार्य करने जाता है, And today the Lord in the name of Jesus is क्योंकि going to वो- do something new in your life. क्योंकि वो आपका दुख और तकलीफ सब कुछ वो देख रहा है। Because He is looking at your worries and your problems. आपके जीवन में जो समस्या के दुखी में और समस्या में आप फंसा हुआ है, तो भी मेरे प्रियो आज के दिन आपको प्रभु चंगाई करने वाला परमेश्वर है, आपके जीवन में कुछ नया कार्य करने वाला परमेश्वर है। He will deliver you in spite of if you are in the midst of problems and troubles. हम वचन में पढ़ेंगे योना चैप्टर 4 वर्स 2। ये परमेश्वर किस तरफ से परमेश्वर करके हम देख लेंगे। We'll read Jonah chapter 4. चैप्टर 4 वर्स 2, उसमें लास्ट वचन पढ़ेंगे। ये परमेश्वर किस तरफ से जो परमेश्वर है, What kind of God is our God? ये आपका दर्द को, आपको जो तकलीफ को वो देख के चुपचाप बैठने वाला परमेश्वर नहीं है। He is not a God who just looks at you in worries and not take any action. ये हम पढ़ेंगे Jonah chapter 4 verse 11. 2। Sorry, verse 2. So he prayed to the Lord and said, Our Lord, was not this what I said when I was still in my country? Therefore I fled previously to Tarshish, for I know that you are a gracious and merciful God, slow to anger and abundant in loving kindness,
one who relents from doing harm. जो सेकंड वर्स में लास्ट पैरा पढ़ेंगे। और उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर तो है। परमेश्वर के बारे में जो बता रहा है, ये परमेश्वर तो अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। He says you are a loving God, a compassionate God. विलंब से कोप करने वाला, विलंब से घोर करने वाला, अनु करुणा निधान है। ये परमेश्वर करुणा का निदान परमेश्वर है। He is a God of mercy. और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। अब जो किसी को भी जो दुख देखे वो प्रसन्न नहीं होता है। He is not rejoicing by giving troubles to anybody. आपके जीवन में अगर दुखी में चलता है तो वो प्रभु देख के खुश नहीं होता है। If you are going through problems, God is not going to be pleased with it. आपके जीवन में समस्या है तो वो प्रभु देखता है। If you have any problem, the Lord is watching over you. परमेश्वर क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है, आपके ऊपर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। Because He is a gracious God and He loves you. आज मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर आपके साथ जो बात करने वाला है, किस तरफ से प्रभु कार्य आपके जीवन में करने वाला करके प्रभु आपसे बात करेंगे। The Lord is going to speak to you about how He's going to do wonders and new things in your life. हमने पढ़ लिया परमेश्वर दयालु परमेश्वर है और दुख देके हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर करके हमने पढ़ लिया। And we see that He is a merciful God and He is a God who delivers from all problems. हम पढ़ेंगे वचन में लूक चैप्टर 7 वर्स 11। लूका 7वां अध्याय 11 वचन। Now it happened the day after that he went into a city called Nain, and many of his disciples went with him and a large crowd. थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। हालेलुया। Hallelujah. इसमें क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह जो नाइन मूल को मतलब जो गांव तरफ जाने के समय में बहुत ज्यादा भीड़ उनके साथ चल रहे थे। So we see that in this town, in the city of Nain, a large crowd was going along with them. अब ये समझ लो क्यों परमेश्वर के पीछे इतने ज्यादा भीड़ जाती थी। You need to understand why there was such a large crowd following Jesus. उसका पहले हम ये देख लेंगे, ये वचन ऐसे रहने दो और आगे लूक चैप्टर 4 वर्स 40 वो क्यों परमेश्वर के पीछे जा रहे थे उसके बारे में जो प्रभु जो लिखा है। We'll see in Luke chapter 4 verse 40 why the people were following Jesus. When the sun was setting, all those who had any that was sick with various diseases brought them to him, and he laid his hands on every one of them and healed them. सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए। अलग अलग बीमारी, अलग अलग समस्या लेके जो उधर जो गांव में बहुत जन तकलीफ में गुजर रहा था। We see that there were many people suffering with various sicknesses and और diseases, सबको मालूम पड़ गया इस जगह में प्रभु यीशु मसीह आने वाले करके। and they came to know that Jesus is coming here. और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। आप ये देख लीजिए जो जो व्यक्ति जो जगह में आया एक एक जन के ऊपर हाथ लगा के सबको चंगाई कर दिया है। And we see that whoever had come there who was sick were laid hands by Jesus and they were healed. अगर आप कुछ बीमारी में, कुछ प्रॉब्लम में, कुछ समस्या में अगर फंस गया तो आप यीशु के पास आ जाओ। If you are going through problems or any kind of situations, come to Jesus. मेरे प्रियो, वो सिर्फ मसीह के लिए नहीं
दुनिया में जो आया पूरे He- संसार के लिए आया है। He is not a God who just came for the Christians, but He's come for the entire world. ये पूरे संसार के ऊपर पिता परमेश्वर ने प्रेम करके वो संसार के ऊपर जो मनुष्य नाश नहीं होना करके सोच के अपने एक ही लौटा पुत्र को ये जगत में दे दिया है। He sent His Son into this world so that no one should perish but have eternal life. हालेलुया। Hallelujah. आपको बचाने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया है। He came to this world to save you and to deliver you. मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बच्चों, अगर आप मसीह में हो ना मसीह में हो, लेकिन प्रभु आपको भी प्रेम करने वाला है। My dear brothers and children, whatever problems you are going through, it doesn't matter, but Jesus even loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। He is a God who loves you. आपको ऊपर ग्रहण करने वाले परमेश्वर है। He is a God who cares for you. जो हमने वचन में जो लिखा है, ये जो परमेश्वर दयालु परमेश्वर है और आपके जीवन में दुख देके, तकलीफ देके वो चुपचाप बैठने वाला परमेश्वर नहीं है। We read in the word that God is a God who is compassionate, and He is not a God who gives you trouble and a God who sees you in trouble. जो जगह में उनके नाम को सुन के सब जन उनके पीछे पड़े, क्योंकि हर इंसान को कुछ ना कुछ जरूरत है। And we see that all people were following Jesus for the name of Jesus because every person is going through various problems. आपके जीवन में भी क्या जरूरत है आपको पता है। You know what you need for your life. आपको बगल वाले की भी नहीं पता है। Your neighbor is not aware of it. कभी कभी सब पर्सनल इशू रहता है, सिर्फ आपको मालूम होगा। आप अंधेरे में बैठ के रोते 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 अपने जीवन बिताता होगा। You might be going through some situations which are too personal for you, which no one is aware of, but you must be crying and pouring out in the inner rooms of your house. हर चीजों के बारे में सबको नहीं बता सकता है। You can't share everything to everybody. अगर से कोई चीज हम बताएंगे तो वो सामने वाला आपको ऊपर मजाक मस्ती उठाएंगे। You know, people may make fun of your situation if अगर people आप are aware. सोचेंगे मैं ये किस तरफ क्या बताऊं, किसको बताऊं, इसी में से मैं कैसा बाहर आ जाऊं, मेरे जीवन में कैसा कार्य होगा करके अगर आप सोचते हो तो आज प्रभु परमेश्वर आपके लिए जो बात करने वाला है। If you are wondering who will I share my problems to, who will save me, how will I tell people, if right now I'm telling you, call and come to Jesus. मेरे प्रियो, आज परमेश्वर यीशु मसीह आपको कुछ नया कार्य करने के लिए आपके जीवन में आने वाला है। My dear ones, Jesus is going to do something new in your lives. जो किस तरफ से, जो गांव से, जो आजू बाजू वाले से जो मिल के आया, सब जन को प्रभु ने हाथ लगा के चंगाई किया। वही परमेश्वर आज भी जीवित है। वही परमेश्वर आपको ऊपर हाथ लगा के आज चंगाई करने वाले परमेश्वर आपको बुला रहा है। The same God who stretched out His hands and healed those who came from villages and towns to meet Him, that very same God is calling you and is ready to heal you and touch you today. ये जो जगह में जाने के समय में In this city when Jesus was going, परमेश्वर का शेरों को आ रहा था, उसके साथ में बहुत जन जो मतलब उसके साथ आ रहा था। so we see that the disciples of Jesus and a large crowd were following Jesus. Verse 12. Chapter 7, Luke chapter 7 verse 12. Luke chapter 7 verse 12. And when he came near the gate of the city, behold, a dead man was being carried out, and only son of his mother, and she was a widow, and a large crowd from the city was with her. जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा, तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए। एक मुर्दे को मतलब एक जवान है, एक यंग मैन है, उनको वो मर गया है, उनको लेके जा रहा है। So we see that there was a young man who was dead, and they were carrying him. एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एक इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी। नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। एक विधवा और उनका एक बेटा है। There was a widow and her young son. अब ये देख लीजिए, ये जो छोटी बच्चा नहीं, बड़ा लड़का है, यंग है, वो माता वो भीड़ के साथ में जा रहे हैं, सबको मतलब उनको मैयत में
उसको साथ में लेके जाता है। And we see that he was not a little boy, but he was a young man. And as he died, they were carrying him for a burial, for a funeral. वो स्त्री बहुत कुछ रोते होंगे, And that widow would have been crying a lot. क्योंकि उन्होंने क्या सोचा होंगे, मेरा पति नहीं है, मेरा एक ही लौटा पुत्र है, ये बड़ा होंगे, मुझे संभालेंगे, मेरी जिंदगी वापस बनेंगे, मैं खुशी के साथ जीवन बिताएंगे करके काफी चीजों के बारे में उसने सोचा होंगे। She would have been so glad to think that though my husband has passed away, but my son is there, he'll grow, he'll become someone great, and he'll be there for me. मेरे पति नहीं है तो क्या हुआ, Though I don't have my husband, what's there? मेरा बेटा है, My son is there. मेरा बेटा संभालेंगे करके उनके ऊपर काफी भरोसा रखा था। She was putting her faith on her son that my son is there for me. तो अंतिम में वो सन मर चुका है, तो उनको मैयत में उनको दफन करने के लिए सब जन जा रहा है। वो स्त्री रोके रोके काफी तकलीफ से जाती थी। And we see that when that one son of her dies and he is taken for a funeral, she was weeping a lot. Verse 13. When the Lord saw her, he had compassion on her and said to her, "Do not weep." उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसे कहा, मत रो। उससे देखे प्रभु को तरस आया। अब ये समझ लीजिए, जो स्त्री कितनी तकलीफ में रोती होंगे, परमेश्वर यीशु मसीह वो देख लिया, सबसे पहले उनका तकलीफ को उन्होंने देख लिया। We see that when this widow was crying and weeping, Jesus first saw her troubles. उनका पेन के बारे में उनको मालूम पड़ा। He was aware of her pain. वो विधवा करके यीशु को मालूम पड़ा। Jesus knows that she was a widow. और कोई भी जाके यीशु मसीह के पास जाके, ये प्रभु इनको चंगाई करो, ये स्त्री के एक ही लौटा पुत्र है, ये मर चुका है करके कोई उनके पास गिनती नहीं की। Nobody went to Jesus to intercede and ask Jesus that please heal her, please heal this boy because she has this is the only son for this lady. वो विधवा स्त्री का दर्द, उनका अंदर कितने तकलीफ, कितने पेन और कितनी समस्या लेके वो रोती करके वो देखे, परमेश्वर स्वयं उनके सामने गए। And we see that Jesus was aware of the problems and troubles that this woman was going through, that he himself went there. और प्रभु उनको देखे मन उनको व्याकुल हो गया है। And we see that Jesus was broken looking at this. मेरे प्रियो, जो प्रभु उनको जो बता रहा है, रो मत। And Jesus says to this widow, do not cry. आपका जीवन में अगर आप इस स्थिति में आप जाते होंगे, तो मेरा प्रियो, आज परमेश्वर आपके जीवन में क्या करने वाला है। My dear ones, if you are going through the similar situation, we see what the Lord is going to do in your life today. आपको परिवार में अब सब कुछ खोया होंगे। You would have lost many things in your lives. आपको पति और पत्नी और बच्चों और माता पिता भाई बहन और सबको आप खोया होंगे। You would have even lost every relation from your lives. आप सोचेंगे मेरे लिए कोई भी नहीं है, कोई सहारा नहीं है करके, अगर आप सोचेंगे तो, If you are thinking that you don't have anybody for you, और कोई बड़ी बीमारी में फंसाए होंगे, or you must be sick, और डॉक्टर ने कहते हैं अभी आप बच नहीं सकते हैं, आप मरने वाले करके डॉक्टर इस तरह भी कोई बात किया होंगे। the doctors would have washed their hands and said that you cannot survive. और परमेश्वर आपको थोड़ा दिन ही दिया है करके कोई टाइम भी लिमिट दिया होंगे। And they would have told you that you just have a very little time to survive. तो कभी मरण आएगा, कभी डेथ होएगी करके डर के बैठा होंगे। You must be fearful, thinking when will my last be? और परिवार में कोई आशीष नहीं है, उदार, मतलब जो कर्जे में घुसा हुआ है, फंसा हुआ है, और इसमें से बाहर निकलने के कोई रास्ता नहीं करके आप सोचेंगे। And you think that you must be thinking, what is a way to come out of your debts or your troubles, your financial problems that you must be going through? और आपके जीवन में खुशी नहीं है, आनंद नहीं करके आप सोचेंगे। And you must be thinking that you are not happy or glad. आप सोचेंगे मेरा जीवन खत्म हो गया है, अभी मेरे पास कुछ दुनिया मिलने वाला नहीं है, मेरा जीवन अभी पूरा खत्म हो गया करके अगर आप सोचेंगे तो। And if you are thinking that there's no way for you to live ahead, परमेश्वर तुमको देख रहा है,
Jesus is looking at you. किस तरफ जो स्त्री को परमेश्वर देख लिया उस तरफ आपको देख रहा है। The same way that Jesus looked at the widow, he's going to look at you. आप दिन रात को रोती रहती होंगे और परमेश्वर आपका आंसू भी देख रहा है। And Jesus is going to wipe the tear that you have been shedding all this while. मन बिराने वाला मन, उनका मन व्याकुल होके प्रेम को आंसू पाने वाला परमेश्वर है अपने यीशु मसीह। Our Jesus is a God who is compassionate and his heart is heavy for you. जो परमेश्वर बता रहा है रो मत। And he says, do not weep. परमेश्वर यीशु मसीह आपका जीवन भी देके बता रहा है, आपको तकलीफ देके बता रहा है तुम रो मत। And Jesus is looking at your problems and saying, do not weep. हालेलुया। Hallelujah. इतने प्यारा परमेश्वर आपको कहता है तुम रो मत। There's such a loving God is telling you, do not cry. वो स्त्री के सामने जो बता रहा है तुम रो मत, इसका मतलब क्या है? What does it mean? आप क्या समझेंगे? आप एकदम तकलीफ में गुजर रहा है, प्रॉब्लम में है, कोई आके बताए तुम रो मत, इसका मतलब जो है मैं हूँ तुम्हारे लिए, ऐसा प्रभु आपको ताकत दे रहा है। When someone turns to you and says, do not cry, what do you think? But Jesus says that because he is there for you, he says, don't cry. हालेलुया। Hallelujah. आपके लिए आप सोचेंगे मेरे लिए कोई नहीं है, मेरी जिंदगी खत्म हो गया, मेरा जॉब चला गया, मेरा हर चीज लॉस हो गया, मेरे लिए कोई नहीं है, लेकिन प्रभु परमेश्वर आज बता रहा है मैं है तुम्हारे लिए। No matter what you would have lost, you would have been totally alone and lonely right now, but God is saying that I am there for you. हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्रिय जो परमेश्वर यीशु मसीह हर बातों से उनका चंगाई होता है, There is healing in every word of Jesus. उनके नाम से चंगाई होता है, There is healing in the name of Jesus. उनको पर जो भी कोई भी व्यक्ति विश्वास करेंगे तो उनके जीवन में परिवर्तन होने वाला है। And if anybody believes in Jesus, there will be a और transformation. उससे बढ़कर अनंत का जीवन देने के लिए प्रभु परमेश्वर तैयार है। And Jesus is ready to give you a graceful, a merciful life. जो विधवा स्त्री के साथ उन्होंने बात किया, रो मत मैं हूँ करके जो बताया है, और आगे बढ़ेंगे। Just as Jesus told this widow, do not weep. We'll read ahead in verse 14. Then he came and touched the open coffin, and those who carried him stood still. And he said, young man, I say to you, arise. तब उसने पास आके अर्थी को छुआ। हालेलुया। देख लीजिए यीशु मसीह वो जो मय्यत में जो इंसान जो मरा हुआ है उधर आके, And we see that Jesus came at the funeral area. आके क्या किया है? अर्थी को छुआ। अर्थी को छुआ है, मतलब उनको टच किया है, जो मय्यत को जो बॉडी है उसको टच किया है और उठाने वाले ठहर गए। देख लीजिए। And we see that Jesus came and touched the open coffin. किसी को पता नहीं है ये यीशु मसीह करके। Nobody knows that this is Jesus. वो जो पेड़ जो जा रहा है, मय्यत लेके जा रहा है, उनको पता नहीं यीशु मसीह सामने आके ये इस तरह कार्य करने वाला करके। And they are not aware that Jesus is going to do such things. यीशु मसीह ने वो उनको को छू लिया, And Jesus touched. और जो उनको जो उठा के लेके जाने वाला रुक गया है। And we see that those men who were carrying stopped. यीशु मसीह आपका जीवन में एक पद छुए तो आपके जीवन में हर समस्या रुक जाएगा। If Jesus touches you, every situation of your life is going to change. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अपने उत्साह के साथ में आप उनको पर विश्वास कर लीजिए, अगर यीशु मसीह आपके जीवन में टच करेंगे तो आपका जीवन बदलने वाला है। If Jesus touches you, there's going to be a transformation in your lives. और इन्होंने क्या हो गया? तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। उन्होंने और कुछ नहीं किया, ये जवान ये यंग तुम उठ जाओ। He says, young man, I say to you, rise up. ये जो यंग व्यक्ति जो है जवान की देख के परमेश्वर ने चंगाई नहीं किया है। He didn't look at the young man and give this healing. परमेश्वर ने वो जो उनका माँ, वो जो विधवा स्त्री का रोने, उनका तकलीफ, वो हर चीज देके वो स्त्री के लिए अपने बेटे को उनको वापस दे दिया है। He did not look at the young man to do this and rose him, but he looked at the brokenness of this widow, mother, and that's the reason he
raised the dead man. तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। आप किसी के लिए प्रार्थना करते होंगे, You must be praying for someone. आपके लिए आप प्रार्थना किए होंगे, You must be praying for yourselves. और आपका जो मित्र के लिए प्रार्थना करते होंगे। Maybe for your friends. लेकिन आज परमेश्वर जो कहता है, आपको प्रार्थना की प्रभु उत्तर देने वाला है। And as Jesus says, He's going to listen to your prayers. जो मरे हुए व्यक्ति के परमेश्वर ने जीवन दे दिया है। Jesus gave life to this dead man. एक शब्द दिया, उड़ जा करके उन्होंने शब्द है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जीवन है। A word he says, arise, and he rose again, because there is power in every word of Jesus. हालेलुया। Hallelujah. आज जो परमेश्वर का वचन जीवन है, इसके लिए आप और हम जिंदा है। Because the word of God is alive, that is the reason we are alive today. वचन 15। 15 वचन. So he who was dead sat up and began to speak, and he presented him to his mother. तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। हालेलुया। उसने उनको अपना मां का बस दे दिया है। He presented his son to the mother. आपके जीवन में जो नुकसान हो गया, चीज वापस प्रभु देने वाला है। Whatever you have lost in your life, the Lord is going to give it back to you. आपके जीवन में जो मरने कारण मतलब मर गया समझ लीजिए, जो उसको वापस जिंदा करने वाला परमेश्वर आज तैयार है। Every deadly situations in your life, the Lord is going to give it back to you. वचन में जो लिखा है, जो खोया हुआ है, जो मिस हो गया है, जो लॉस हो गया है, उसको वापस देने के लिए मैं जगत में आया करके परमेश्वर बता रहा है। God says that He's come back to this world to give back what you have lost. अगर आपने गलती किया होंगे, आपने कुछ प्रॉब्लम किया होंगे, आपको जीवन में समस्या में आप फंसा होंगे, फिर भी अगर यीशु के पास अगर आए तो प्रभु आज भी तैयार है आपको वापस देने के लिए। No matter what situation you have been going through, but Jesus is there to give you a new life. आपके जीवन में खुशी देने के लिए प्रभु तैयार है। He's ready to give you happiness in your आपके life, जीवन में शांति देने के प्रभु बुला रहा to give है। you peace. उसको बस आइए, Come back to Him. प्रभु बुला रहा है आपको, The Lord is calling you. उसको बस आइए, Come to Him. उसके ऊपर विश्वास कर लीजिए, Believe in Him. उनके ऊपर आप देख लीजिए Look up to God. और उसको पुकारने के समय में प्रभु आपको बस आने वाला है। And when you look up to God, He's going to come to you. वचन में यही लिखा है, जो अपने दर्द को देखे, अपने पेन को देखे, परमेश्वर जवाब देने वाला है। He's going to look at your problems and sufferings, but He's going to answer you. परमेश्वर आपको आशीष करने के लिए बुला रहा है। God is calling to bless you. एक चीज करना पड़ेगा। One thing you have to do. आप बोलेंगे मैं यीशु के पास आ रहा हूं करके आप सोचेंगे, You'll think that you are coming to Jesus. उन्होंने आपको चंगाई करने के लिए तैयार है, He's ready to heal you. आपको जीवन देने के भी तैयार है। He's ready to give you life. आप उनको पर विश्वास कर लीजिए, Believe in Him. उनका आज्ञा पालन कर लीजिए। Obey His आप word. देख लीजिए आज से आपके जीवन में क्या क्या जिंदगी में चमत्कार हो रहा है। And today you will see what kind of miracles and wonders God is going to do in your life. आज के दिन से आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार मिरेकल हो रहा करके आप देख लीजिए। Today itself see whatever wonderful things that the Lord is going to do in your life. हालेलुया। Hallelujah. हम आज आपके लिए प्रार्थना करते हैं। I want to pray for you. परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, Lord, I thank you. आप हमारा प्यारा परमेश्वर है You're a good, प्रभु। loving God. जो वो स्त्री, जो विधवा स्त्री का दुख देके, तकलीफ देके, दर्द देके आपने उनके जीवन में चंगाई किया है। You looked at the brokenness, the troubles that widow was going through, जो मरेगा जो बेटा है उनको जिंदा करके दे दिया आपने। and you rose that dead young man, and you rose him again. आज मैं प्रार्थना करता हूँ, जो देखने वाले, जो सुनने वाले भाई बहन के जीवन में प्रभु, जो मरा हुआ जीवन, जो लॉस हो गया जीवन, जो नुकसान हो गया जीवन, वापस दीजिए प्रभु। I pray for every child that is lost and has gone through deadly situations to heal them and let there be a deliverance in their lives. जो चीज के लिए जो प्रार्थना करते हैं, लगातार प्रार्थना करता है, Whatever they have been persistently praying for, रोज आंसू बह रहा है,
and they have been shedding their tears प्रभु every day. उनको आंसू देखे, उनके जीवन में कार्य कर लीजिए, Look at their tears and do a new miracle in their lives. क्योंकि आपने दयालु परमेश्वर है। Because you are a compassionate God. कोई भी व्यक्ति जो तकलीफ में है, जो आंसू बहा रहा है, तो उसको देख के आप चुपचाप बैठने वाला परमेश्वर नहीं है। You are not a God who sits quiet when you see people suffering. आप प्यारा परमेश्वर है। You're a loving God. आज के दिन कोई भी व्यक्ति जो मरण के मतलब हॉस्पिटल में एडमिट हुए होंगे और मेडिसिन करने के लिए पैसा भी नहीं करके घर पे बैठ के रोते होंगे, प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन में कार्य कर लीजिए। There are several people who are admitted right now in the hospitals or are suffering with financial problems. Assist them and help them today. चमत्कार कर दीजिए प्रभु, Heal them today. परिवार में चमत्कार कर लीजिए। Do a miracle in their आने वाले families. दिनों में आपको नाम को महिमा करने के लिए एक साक्षी बनने की प्रभु कृपा कर लीजिए प्रभु। Raise them as a testimony to glorify you in the days to come. जो व्यक्ति कोई जॉब नहीं है, अच्छे जॉब नहीं है, फाइनेंस प्रॉब्लम में और क्या करूं, किस तरह मैं जीवन बिताऊं करके तकलीफ में जो रोता है, उनके लिए प्रभु मदद कर लीजिए। Lord, help those who are struggling without jobs or financial problems. और आखिरी काफी दिन से कोई चीज के लिए जो प्रार्थना जो करता है उत्तर आया नहीं है करके रोते रोते बैठा है, लेकिन प्रभु आज के दिन दया करके कृपा करके प्रभु उनको प्रार्थना को उत्तर दीजिए। प्रभु जो चीज के लिए प्रार्थना करता है उनको आप देख के आपका नाम ऊंचा उठा लीजिए प्रभु। Lord, there are many people who have never got their prayers answered. Today do a miracle and let them receive their answers. आपने हमारा प्रार्थना सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद देता है। We thank you for listening to our prayer. प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम से हम मांगते हैं। In Jesus' most holy name we pray. आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु आपसे बुला रहा है और आप प्रभु के पास आइए, प्रभु आपको चंगाई करने वाला है। The Lord is calling you. Come to the Lord because He's ready to heal किस you. तरफ से एक एक जन के ऊपर हाथ लगा के चंगाई किया, परमेश्वर आपको ऊपर हाथ लगाने वाला Just है। like Jesus laid His hands on every person, the same way He's going to lay His hand on you and heal you. आज परमेश्वर आपको ऊपर हाथ लगा के चंगाई कर दिया है। विश्वास के साथ उनको धन्यवाद देंगे। Believe that today the Lord has stretched His hand and has touched you and healed you. Amen. And let's thank the Lord. आमीन Hallelujah. आमीन। Amen. God bless you। God bless you. Thank you so much for joining along with us in this live stream. जैसे आप इस लाइव स्ट्रीम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हम धन्यवाद कहते हैं। एंड हम विश्वास करते हैं कि आप अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ ये शेयर किए हैं कि जो कोई भी टूटे हुए हैं इस समय पर, स्पेशली ये सफरिंग टाइम में, प्रभु उनको एक सामर्थ बन के उनको आशीष करे। हालेलुया। डू फॉलो अस ऑन द हार्ट ऑफ क्राइस्ट चर्च पेज जो फेसबुक में है, और हार्ट ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो कुछ भी मीटिंग्स और मैसेजेस अपलोड होता है आप उसमें अपडेट रहेंगे। हालेलुया। हम सब प्रभु के नाम की महिमा के लिए साथ मिलकर उनकी महिमा करने के लिए ही प्रभु ने हमें चुना है। हालेलुया। हर एक समय में आपके परिवार में, आपके फ्रेंड्स के और सबके लिए आप एक ज्योति बनकर रहे। आमीन। तो जैसे आपने ये उत्साहित encouraging this encouraging word as you have heard, let it reach out to your friends and families. So don't forget to share it, and as you have and also you can comment your prayer requests or anything that you are going through, so that we can spend time in prayer for you. Hallelujah. Let's close this with a prayer. I'll call Brother Daniel forward and let us glorify the Lord. Let us pray. आए हम प्रार्थना करेंगे। Thank you, Jesus, for this wonderful time you've given us, Lord. प्रभु धन्यवाद करते हैं सुंदर समय जो आपने दिया, Lord, thank you for what you have done in our lives, Lord Jesus. जो कुछ भी कार्य आपने किया उसके लिए धन्यवाद। Lord, thank you for keeping your grace and your mercy upon us. आपका अनुग्रह और दया हमारी ऊपर है उसके लिए धन्यवाद। Thank you for keeping your precious hand over us. आपका हाथ को आपने हमारे ऊपर रखा है उसके लिए धन्यवाद। Thank you for taking us under your wings. आपके पंखों तले आपने हमें संभाल कर रखा उसके लिए Lord, as Pastor धन्यवाद। preached today, जैसे हमने आज वचन सुना पास्टर के द्वारा, help us to put our faith in you, Lord Jesus. हमारे विश्वास को आपके ऊपर रखने के लिए हमें मदद कीजिए। You are a healer. आप चंगाई करने वाले You are a परमेश्वर, protector.
हमें सुरक्षित रखने वाला You are the one who परमेश्वर, take cares of us. आप ही हमें संभालते हैं। Help us, Lord Jesus, to love one another. एक दूसरे से प्रेम रखने के लिए हमें मदद कीजिए। Help us to love each and every one of us who are against us. प्रभु, जो कोई हमारे विरोध में आता है उनसे भी प्रेम करने के लिए हमें मदद कीजिए। Give us a heart of forgiveness. ऐसे एक हृदय दीजिए क्षमा करने के लिए। Help us, Lord Jesus. हमें मदद कीजिए प्रभु। Lord, thank you, Lord Father, for protecting us throughout the week. और प्रभु, पूरे हफ्ते आपने हमें संभाल कर रखा, उसके लिए धन्यवाद। And thank you, Jesus, for keeping your hand for the coming week. और आने वाले हफ्ते भी आपका हाथ हमारे संग है, उसके लिए धन्यवाद। Lord Jesus, please don't give the devil a chance in our life. और कभी शैतान को हम एक मौका न दें हमारे जीवन में कार्य करने के Because लिए, everything is into your hands. क्योंकि सब हम आपके हाथों में देते हैं। Help us, Lord Jesus, to grow more in you. और भी आपने बढ़ने के लिए हमें मदद कीजिए। Let us put our trust in you, day by day and time by time. हमारा भरोसा आप में रखने के लिए हर दिन मदद कीजिए। Protect us from top to bottom, left to right, and front to back. ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, हर जगह आप हमारे संग रहे। Thank you for showing your grace and mercy upon the cross of Calvary. अनुग्रह और दया आपने क्रूस के द्वारा दिखाया, उसके लिए धन्यवाद। Because of those precious blood on the cross of Calvary, we are saved. और प्रभु, वो बहुमूल्य लहू की वजह से आज हम बचाए गए हैं। Thank you, Jesus, for everybody who's watching this live stream. आज जो कोई ये लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। And for the people who are not being able to watch, और जो कोई देख नहीं पाए आज, bless them, Lord उन्हें Jesus. भी आशीष Let कीजिए। them have peace and unity in their family. उनके घरों में शांति समाधान रहे, Help them to live more in you. और भी अपने बढ़ने के लिए उन्हें मदद Help कीजिए। them to see you more. आपको देखने के लिए मदद कीजिए। And Lord Jesus, I pray for the people at the hospital once again. और हम हॉस्पिटल में जो कोई है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। Bless them, Lord Father. उन्हें आशीष कीजिए, Comfort them, Lord Jesus. तसल्ली दीजिए, Let there be no financial crisis. और आर्थिक परिस्थिति से उन्हें बचाइए। Bless them, Lord Jesus. उन्हें आशीष कीजिए, Comfort them. तसल्ली दीजिए प्रभु। Thank you, Jesus, as you're going to do so. धन्यवाद यीशु, आप करेंगे। Once again, I submit each and every one of us into your hands. हर एक को आपके हाथों में देते हैं, You take total control. आप चलाइए। In the name of Jesus, I humbly pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. Amen. आमेन, आमेन। हालेलुया। हम आशीष की प्रार्थना मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। तू मुझे सचमुच आशीष देता, तो मुझे आज सचमुच आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता, मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता तो मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं इससे पीड़ित न कि रहूं। मैं इससे पीड़ित न रहूं। आमेन। Do the benediction. जीवन देने के लिए स्वर्ग राज्य से पृथ्वी में आया उद्धार करने वाला यीशु मसीह का अनुग्रह, संसार को पर इतना जो प्रेम किया है, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का अभिषेक और आशीष हम सबके साथ हमेशा हमेशा बने रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।